A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are covering the memory unit of computer system. So, memories are of three types, that are primary memory, secondary memory and cache memory. In this video, we are covering the primary memory and cache memory. So first of all, what is memory unit? We are talking about memory unit. The memory unit is the amount of data that can be stored in the storage unit. This storage capacity is expressed in terms of bytes. It is just like a human brain where the data is to be processed and instructions required for processing are stored. We can store the data in a form of bits, nibble, byte, KB, etc. Okay. So now the memory is divided into large number of small parts called cells. So when we have stored anything, that information is divided into small cells, and in the cells the information we used are stored. Okay, so suppose we have a 64K words in a file. So this memory unit has 64, the multiple of 1024, that is equals to 65536 memory locations. We have 65536 memory locations where we can store our data. Okay. Now the memory is primarily divided into three parts, that are primary memory, which we also call as main memory, then secondary memory, which you have to know familiar as a hard disk, and the third one is cache memory. Okay. So first of all, primary memory or main memory. We talking about the primary and main memory. So before that, I have to know you that what is main memory or memory. The memory unit that communicates directly with the CPU is called the main memory. Our main memory is doing something that interconnects us directly with the CPU. CPU takes the instructions from main memory and give the output related to that locations. Okay. The memory used for permanent storage or backup purpose is called secondary memory. Okay. So you know that we are talking about the main memory, secondary memory. Here main memory where the instructions are taken by the CPU, in the secondary memory where we have to permanently store our backup purposes. Okay. चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी. द मेमोरी यूनिट दैट्स कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी. Now, a primary memory holds only those data and instructions on which the computer is currently working. Okay, it has a limited capacity and data is lost when power is switched off. So, primary memory, which we also called as RAM. Okay, RAM is our primary memory or main memory, where what happened that the data or instruction on which we are to working are stored only for that time, and when our computer or laptop is switched off, the information stored in that RAM is volatile. It means it is erased. Okay. So there the main memory is of two types. First of all, that is RAM, and the second is ROM. So you all know that a RAM, which is a metal oxide semiconductor, is also known as read and write memory or random access memory. Okay, it is a volatile memory. What is the meaning of volatile? That if the power is switched off, the information stored in that memory is erased immediately. Okay, it is sometimes also known as temporary memory. Okay, and we know that the different type of RAMs are used. So as a DDR3, DDR2 RAM, which we have to use in our computer to speed up our computer or any device. Okay. So now the RAM is further divided into two types, that are static RAM and dynamic RAM. What is static RAM? Static RAM is the full form of SRAM. The SRAM is a storage using the state of 6 transistor memory cell. We have to not going insert. हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है. हम नॉर्मली स्टैटिक रैम क्या होता है कि it is also a volatile in nature, but as long as they are supplied with power, they need not require special regenerated circuits. Okay, static RAM
is take transistors and other devices to store a bit. आपकी जो स्टैटिक रैम होती है आप उसको कैशे मेमोरी भी कह सकते हैं, मतलब ऐसी रैम जो क्या होगी आपके कुछ टाइम के लिए आपके उस सिस्टम के अंदर यूज होती है. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक रैम. डायनेमिक रैम जिसको आप DDR, मैंने आपको बताया था DDR2 या DDR3, तो ये जो रैम्स होती है वो कैसे होती है, डायनेमिक रैम्स होती है. ओके, डायनेमिक रैम्स allows you to store each bit of data in a separate capacitor within a specific integrated circuits. ओके, इसके अंदर क्या होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है और एक ट्रांजिस्टर होता है जिसकी हेल्प से क्या करता है, रैम को वर्क करवाता है. ओके, तो डायनेमिक रैम इज द स्टैंडर्ड कंप्यूटर मेमोरी ऑफ द मैनी मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. जो हमारी डायनामिक रैम होती है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर मेमोरी है जो सबसे ज़्यादा यूज होती है हमारे पास. क्या डायनामिक रैम होती है, बट एक डिफरेंस ये है कि जो स्टैटिक रैम होती है उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो डायनामिक रैम से क्या होती है, फास्ट होती है. ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है. चलिए नाउ अब हम बात करते हैं रोम के बारे में. रीड ओनली मेमोरी. ओके, द रीड ओनली मेमोरी परफॉर्म ओनली रीड ऑपरेशंस. ओके, इन द रोम राइट ऑपरेशन इज नॉट परमिटेड. रोम इज यूज्ड टू स्टोर द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोस सिस्टम. रोम के अंदर आपने अगर एक बारी कोई ऑपरेशन कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने उसके अंदर एक बारी इंसर्ट कर दी है तो आप हम उसको चेंज नहीं कर सकते. ओके, द मेमोरी विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट. दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ए नॉन वॉलेटाइल. नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाता है बट इसके अंदर जो आपके पहले से एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम्स हैं वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो हमेशा उसके अंदर स्टोर रहते हैं. द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरीज यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करी रहती है वो हमेशा उसके अंदर रहती है. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम. आपका जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस में स्टोर है, वो आपका रोम के अंदर स्टोर है, जिसको आप कभी भी एक तो चेंज नहीं कर सकते और दूसरा नॉन वॉलेटाइल. इसका मतलब क्या है कि आपके भले ही कंप्यूटर की लाइट्स ऑफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है जो आपके कभी भी क्रैश नहीं होती या डिलीट नहीं होती है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रोम. सो इन दिस फर्स्ट वी हैव PROM, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो PROM क्या होता है कि इट इज अ रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय अ यूजर. द यूजर बाइज अ ब्लैंक PROM एंड एंटर द डिजायर्ड कंटेंट्स यूजिंग अ PROM प्रोग्राम. ओके, तो PROM क्या होता है, एक मेमोरी चिप है जिसे केवल एक बार हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं. ओके, सो इस चिप को वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहा जाता है. ओके, अब एक बार जब PROM को प्रोग्राम कर लिया जाता है, अगर आपने एक बार उस PROM को प्रोग्राम कर दिया तो उसके बाद उसमें जो डेटा है आप उसको इरेज नहीं कर सकते हो. वो उस चिप के अंदर अब क्या हो गया, हमेशा के लिए राइट हो चुका है, अब आप उसको वापस चेंज नहीं कर सकते. ओके, ये होता है आपका PROM. और इसको एक स्पेशल डिवाइस होता है PROM प्रोग्रामर प्रोग्राम्स, जो इसको क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं. ओके, तो अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि PROM और रोम में डिफरेंस क्या है. अब ये टाइप्स तो है बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है PROM और रोम के अंदर वो आपको पता होना चाहिए कि जो PROM जब PROM को बनाया जाता है तो उसकी मेमोरी क्या होती है, एम्प्टी होती है. ठीक है ना, बट जबकि रोम को बनाते वक्त ही उसे प्रोग्राम कर दिया जाता है. अगर आप रोम बना रहे हो तो उसी वक्त उस रोम को प्रोग्राम कर दिया जाता है कि आपके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर रहेगा. बट PROM जो होता है वो जब उसे बनाया जाता है तो वो क्या होती है, एम्प्टी होती है, तो उसके अंदर आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोग्राम उसके अंदर स्टोर कर सकते हो. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ रोम, दैट इज EPROM. इट मींस इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. आपको नाम पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, इसका मतलब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते होंगे रोम को. हाँ, तो आपको सही समझ रहे हो आप कि दिस चिप्स परमिट टू इरेज द कंटेंट्स स्टोर्ड इन इट. ओके, सो EPROM जो होता है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. ओके, इट इज ऑल्सो अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप इन विच these chips permit to erase the contents stored in it. In EPROM,
the informations or contents can be erased by using ultraviolet lights. Okay, EEPROM में डेटा को इरेज करने के लिए या वापस उसको अंदर उसको प्रोग्रामेबल करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस का यूज किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, PROM प्रोग्रामर या PROM बर्नर. ओके, ये वही डिवाइस है जो आपका PROM के अंदर आपने यूज करा था. ठीक है ना. देन द थर्ड टाइप ऑफ रोम दैट इज EEPROM. सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो आपका रोम का टाइप है वो क्या है, EEPROM. अब PROM और EEPROM की जगह सब कंप्यूटर्स के अंदर EEPROM ही यूज होता है. ओके, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. Okay, EEPROM is programmed and erased electrically. It can be erased and reprogrammed about 10,000 times. Okay, तो यहाँ पे हमें EEPROM जो था उसको आप अगर 9 या 10 बारी अगर आपको वापस इरेज करके अगर आप उसको यूज करते तो उसका जो सिलिकॉन चिप थी उसके अंदर दिक्कत होने लग जाती थी, जिससे आप उसको ज्यादा बारी इरेज करके वापस प्रोग्राम नहीं कर सकते थे. बट जो EEPROM है ये आपको क्या कहता है कि ये इसको आप 10,000 टाइम्स आप इसके अंदर उसको इरेज कर सकते हो या और रीप्रोग्राम कर सकते हो. ओके, इन EEPROM एनी लोकेशन कैन बी सिलेक्टिवली इरेज्ड एंड प्रोग्राम. ओके, तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो क्या है, स्टोरिंग करंट टाइम एंड डेट इन मशीन. हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो यूज करते हैं टाइम और डेट मशीन, वो इसके अंदर आप यूज कर, वो EEPROM की हेल्प से होता है. लास्ट एंड फाइनल टाइप इज MROM. MROM का फुल नाम क्या है, मास्क्ड रोम. The first ROMs were hardwired devices that contain a pre-programmed set of data or instructions. Okay, these kind of ROMs are known as masked ROMs, which are inexpensive. ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि मैन्युफैक्चरिंग जब आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसी वक्त इसमें प्रोग्राम जो भी आप स्टोर करना चाहते हो उसी वक्त इसमें स्टोर करना पड़ता था. ठीक है ना. अब दूसरी ये क्या है, इनएक्सपेंसिव है. ये दूसरी रोम्स के अगर डिफरेंस अगर अपन दोनों में करें तो ये क्या रहती है, ज्यादा उनसे सस्ती है. ठीक है, और इसके अंदर जो डेटा स्टोर डेंसिटी है वो इन सबसे क्या होती थी, ज्यादा होती थी. ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप्स ऑफ रोम्स है. चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कैशे मेमोरी. A cache memory is a chip-based computer component that makes retrieving data from the computer's memory more efficient. Okay, ये सबसे important line है, इसको आप देखें. It acts as a buffer between the CPU and the main memory. ये आपके जो CPU और आपकी जो मेन मेमोरी होती है इसके बीच में एक हिडन मेमोरी होती है जिसको यूजर सी नहीं कर सकता, आप इसको देख नहीं सकते. बट ये क्या होती है, आप इन CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में एक बफर की तरह वर्क करती है. द मेन पर्पस ऑफ दैट कैशे मेमोरी इज टू स्पीड अप मेमोरी एक्सेस बाय स्टोरिंग रिसेंटली यूज्ड चंक्स ऑफ मेमोरी. ओके, व्हाट इट मीन्स, जैसे अगर रिसेंटली अगर आप सपोज करिए आप गूगल क्रोम ओपन करते हो, कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करते हो, अगर आपने उसमें कुछ सर्च करा जैसे हाउ टू आपने लिखा व्हाट इज कैशे मेमोरी. ओके, आपने एक बार इसको यूज कर लिया, फिर आपने सिस्टम क्लोज कर दिया. अगर सेकेंड टाइम आप जब भी क्या करोगे, उस वापस डिफॉल्ट आपका ब्राउजर ओपन करोगे और उसके अंदर आप कैशे मेमोरी लिखोगे तो आपके पास आपको सजेशन आ जाएगा, व्हाट इज कैशे मेमोरी लिखा हुआ आपको सजेशन मिलेगा. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने प्रीवियसली बहुत रिसेंटली जो भी चीजें यूज करी है तो वो आपके क्या होती है कि जो स्टोर होती है, कहाँ होती है, वो कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है. तो उससे आपके जो रिसेंटली यूज्ड जो भी आइटम्स हैं, इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको शो करवा देता है. ओके, तो इसकी जो स्पीड होती है वो सारी मेमोरी से ज्यादा फास्ट होती है. ठीक है ना. ये होते हैं आपके कैशे मेमोरी. ओके, it holds frequently requested data and instructions so that they are immediately available to the CPU when needed. It acts as a temporary storage area that the computer's process can retrieve data from easily. Okay, ये वही है जो हमने अभी आपको बताया. तो हमने इस वीडियो के अंदर प्राइमरी मेमोरी और कैशे मेमोरी को कवर करा है. अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.